एक बर्फ़ पानी हो गया, ये जा रहा है। वो वाला पहाड़ क्रॉस करके यहाँ से आए और आप देख सकते हैं यहाँ से जाके हम लोग यहाँ से चढ़ के यहाँ जाना है। वैसे टू मच एग्जॉस्टेड, अनदर 3 to 4 किलोमीटर आई हैव टू गो। बारिश पड़ा है यहाँ पे और ठंड भी बहुत है, बहुत से भी बहुत। देख सकते हैं पीछे फुल बादल छाए हैं। कुटुंब का ही सवाल यहाँ पे भी नीचे This is heaven, man. This is heaven.
अरे स्लिप हो रहा है ना खतरनाक जगह। We are just 1 kilometer away to the temple. You can see the temple is right there. So I will take you. This is for helipad landing. You can see the surroundings. Chopper is on the way. The background we have to see. Amazing view. टाइम लगेगी। जय बाबा केदारनाथ जी जय। अरे अटकेंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर रुक जाए।
टेंपल के रास्ते में जा रहे हैं और थोड़े दूर में टेंपल है, बट यू आर नॉट सपोज टू मिस दिस व्यू मैन, रियली अमेजिंग. I did 20 plus kilometer of trekking, but it's worth. I was tired around 24 and half kilometers, but this half kilometer to reach the temple giving me the energy booster. You see so many people are there. They are telling expectation is around 300 people are waiting outside the temple for the special puja. नीचे क्या दो तीन पॉइंट क्यों आना पड़ेगा दर्शन के लिए. देख सकती है वहाँ टेंपल है, तो वहाँ से इधर तक लाइन है दर्शन के लिए. दुकान फोन करता नहीं कोई ना. Good morning guys, this is the view from Kedarnath. You can see a chopper is landing here, and this is the ultimate morning that you can see here.
morning view made me crazy, man. Literally. Look at the view, man. टेम्पल यहाँ पे है और क्यों वहाँ से देख सकते हैं आप, क्यों वहाँ से लेके क्यों देख सकते हो आप, देख सकते हैं आप क्यों ऑलमोस्ट वहाँ दिखे। तो ये चॉपर का बहुत सारा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, सॉरी फॉर दैट। लेकिन व्यू ನೋಡ್ಬೋದು, ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸುಂದರವಾದ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನನ. ಸುಮಾರು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬಂಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು. ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ -4 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 6 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಒಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಜೊತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ.
लोग केदारनाथ का दर्शन करके निकल रहे हैं। अभी है हमारे साथ और भी बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। अच्छा था। Choppers while you are coming to Kedarnath, don't go for trekking and horse riding. I suggest you come in between June and July. जून एंड जुलाई का बीच में आने के लिए बोल रहे हैं बंदा। तो Actually, I don't speak Kannada and Hindi. I'm from Russia. I don't speak English. Yeah. See you guys. Ciao. हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं अभी भी। जो लोग दर्शन करके भी निकल रहे हैं, जो लोग कल आए थे वो लोग निकल रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं पीछे जा रहे हैं बहुत सारे लोग। I have reached Gaurikund successfully. Get down from the Kedarnath. Damn tired, man. It was mentioned as 16 kilometers. It's hard. I feel it's more than 60 kilometers. मैं रीच हुआ सोनप्रयाग। ये सोनप्रयाग का ब्रिज है। पीछे वहाँ पे गाड़ी जो ड्रॉप किया, तो गाड़ी लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से आप लोगों को पैदल ट्रैकिंग करना पड़ेगा। पैदल का रास्ता गौरीकुंड से ही स्टार्ट होता है। सुबह 3:30 बजे वहाँ गाड़ी मिलना शुरू होता है गौरीकुंड को। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं 3:30 बजे से, या 3 बजे 3:30 बजे वहाँ केदारनाथ का मंदिर भी खुला रहता है। 3:30 बजे से वहाँ से प्रार्थना पूजा शुरू होता है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से पार्किंग के लिए। हमारा कैब वहीं पे खड़ा है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा किधर रखे थे हम लोग, याद भी नहीं है मुझे एग्जैक्टली कहाँ है। तो कंटिन्यू। From Avali, Uttarakhand. I fell in love with this place, man. हम लोग चेयर लिफ्ट के लिए आए थे अवली का, तो भाई लोग वापस जा रहे हैं अभी। बोरिंग मैन। हम लोग वहाँ से इसके लिए आए थे, अभी क्लोज है यहाँ पे, अब वापस जाना पड़ेगा अभी।
हम लोग होटल से वैसे ही बाहर निकले थे। ये जो सामने दिख रहा है वो हम लोग इधर स्टे किए थे। हम लोग अभी यहाँ ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हम लोग बद्रीनाथ निकल रहे हैं अभी। देख सकते हैं अच्छा खासा होटल है। तो बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले का होटल है ये। यू कैन स्टे हियर, अच्छा होटल है। We are stayed in पांडुकेश्वर। होटल बढ़िया है भाई। द ग्रैंड शिवा होटल है। ये बद्रीनाथ से करीबन 20 किलोमीटर नज़दीक पड़ता है और आपको अच्छा लगेगा। ये बाहर का व्यू, जैसे सुबह उठ के आएंगे तो अच्छा खासा नज़ारा मिल जाएगा आपको। साथ में ये सोनू शर्मा, ये होटल का ओनर है। आपको जो सर्विस देंगे, आप लोग वेलकम है आप सबका। आइए और रूम में लेवल करिए। सपोर्टिव स्टाफ है, आपको जिस तरह का हेल्प चाहिए वो लोग कर देंगे। एक्स्ट्रा बेड वगैरह सब कुछ जो जो चाहिए वो हेल्प कर देगा। आप देख सकते हैं ट्रैफिक कड़ा है यहाँ पे। हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए। यहाँ पे बहुत ठंड है, केदारनाथ को कंपेयर किया तो कम है। देख सकते हैं पूरा पहाड़ है पीछे।
पूरा पहाड़ है, लेकिन केदारनाथ को कंपेयर किया तो यहाँ थोड़ा कम ठंड है, सहन सकते हैं। वहाँ तो अनबियरेबल टेम्परेचर है केदारनाथ का तो। आप लोग देख सकते हैं बद्रीनाथ का क्यू बहुत बड़ा है। हम लोग को पता नहीं अब कब तक दर्शन मिलेगा। हम लोग थोड़े लेट हो गए सुबह, अभी देखना पड़ेगा दर्शन का क्या हाल होगा करके। रानी क्या करवा दर्शन करके हम लोग आ गए। भीड़ तो बहुत था, तो सर अब बाहर आने के बाद आप साइड में देख सकते हैं पीछे ऐसे जगह। यहाँ हनुमान का भी मंदिर है, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है इधर। क्षेत्रपाल ऐसे बहुत सारे साइड में। यहाँ से मंदिर का एंट्री होगा और अंदर जाके हम लोग दर्शन करके वहाँ साइड से बाहर आते हैं। ನಾವು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ। हम लोग बद्रीनाथ का दर्शन करके आ गए। यहाँ स्लाइटली बारिश हो रहा है और देख सकते हैं पूरा क्लाउड, ठंड बहुत हो रहा है यहाँ पे। यूजुअली केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो मैंने नोटिस किया, सुबह का 12-1 बजे तक थोड़ा धूप रहता है, उसके बाद में स्लाइटली बारिश होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। देख सकते हैं पूरा बादल।